everyone, welcome back to this channel. So, have you read the thumbnail of this video? That is tenses. Do you know tenses play a vital role in English language? Particularly, they express our feelings in front of any other person. So क्या मतलब है टेंसेस का, क्या सिग्निफिकेंस है टेंसेस की, आज हम उसके बारे में जानेंगे। ये टेंसेस जो हैं ये पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है आपकी स्पीकिंग और राइटिंग पर्पसेस के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है अब हम आगे वाली वीडियो में जानेंगे। बेसिकली टेंसेस दो तरीके के हो सकते हैं। एक तो एक्टिव है जो आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बोलते हैं, और एक पैसिव है जो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो रिएक्टिव कैसे, वो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा, बिकॉज दीज टू टाइप्स आर क्वाइट इंपॉर्टेंट। So I will compare these types in two videos. Okay, so make sure you subscribe this channel as well and see both the videos. So let's start this video. Imagine tenses as the grandfather of every sentence, and they have three grandsons named as past, present, future. Now again, if I talk about their forms, there's again have four sons named as indefinite, continuous, perfect, and perfect continuous. Now how are they different, and every different type of forms they have, we are going to talk about that. So firstly we're going to talk about past. Past जो बीत चुका है, और past indefinite means जो हमने काम कर लिया है. Simple, it has two forms and we can say two methods to call this past indefinite. So वो क्या है? सबसे पहले आपका आ जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. एंड if you if you forget this particular form, you can use subject plus used to plus verb की first form plus object. Now if I talk about an example, we can use I did that work, and if we use the second form, you can use I used to do that work, means पहले मैंने कर लिया है ये particular work. Now if I talk about past continuous, past continuous का मतलब है कोई भी काम मैंने पहले किया है और वो इतने टाइम तक चल रहा था. So इसका मतलब है कि if I talk about an example or its form, that is subject plus verb that is used as was, were, and verb की first form plus ing form plus object. So if I it exemplified way is that he was writing a letter. We can say it in a very simplified way in this manner. So now if I talk about past perfect, what is the meaning of past perfect? Past perfect means action that had completed in the past, in the particular time. जो particular time पर आपने वो काम कर लिया है, आप particular time के बारे में बता रहे हो साथ में, तो इसका क्या फॉर्म होगी? इसकी फॉर्म है subject plus had, because it's a past you use had, plus इसके साथ verb की third form plus object है. You can use this form in the past perfect. So if I explain it with an example, I would say I had done this work. Now yes, I had done this work means मैंने काम कर लिया है. I had, तो मैंने had भी लगाया है, verb की third form भी लगाई है. So if I talk about the last sentence, that is past perfect continuous, इसका मतलब है if I say मैं 2 घंटे से लेटर लिखता जा रहा था. मैं 2 घंटे स्पेसिफिक टाइम के बारे में बात की है, मैंने कितने टाइम लगाया उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए. So if I talk about its very important form, that is subject plus had plus been plus verb की ing form plus object.
please write these type of forms in a note of paper so that you can remember these forms. I think they matter a lot for achieving the desired band score. So if I talk about any example, they had been doing the work. ओके सो हम ऐसे पास्ट सेंटेंसेस को बनाते हैं. असली अगर सन के बारे में आओ जिसका नेम था प्रेजेंट. सो प्रेजेंट के भी आगे 4 टाइप्स हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या मतलब है? बहुत जानों को तो यही पता नहीं होता प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या मतलब है. सो जो डेली फैक्ट है, जो सारे वर्ल्ड का एक फैक्ट होता है, सभी वो चीज जानते हैं. सो उसे हम इंक्लूड करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में. तो क्या मतलब आ गया फिर? सो प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स यूनिवर्सल फैक्ट लाइक water boils at 100 degrees Celsius. Now, it also has 2 types. First for the singular and first for the plural. Now, what is that? Singular means he, she, it, and in a third person or any object. Like I use the water form. Okay, so the form is subject plus verb first form के साथ s और es plus object. Now, if I talk about the plural ones like they, we, so we use subject plus verb की first form plus object. No s or es is used in this part. Make sure that. Okay, like if I want to say they write letter or they play football, so I doesn't use s or es. That's quite important. Okay, and exception is I, and with I we don't use s or es. We simply use our I write a letter. Okay, if I talk about present continuous, जो आप काम अभी कर रहे हो उसको हम कहते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस. इफ आई टॉक अबाउट माय एग्जांपल, आई एम वीडियोइंग माई सेल्फ. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्म? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और उसके पहले आएगा इज, एम, आर एंड लास्ट में ऑब्जेक्ट. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर मैं इसकी एग्जाम्पलीफाइड में मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दूं तो वो बन जाता है ही इज राइटिंग अ लेटर. There is no problem of plural, singular, they are writing a letter, but the only word that is changed in this sentence is the is, am, are. Is used for the singular ones, am is for I, and we can use are for the plural ones. Okay, so this is this difference. Now present perfect. What is present perfect? क्या मतलब है present perfect का? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है इस समय कंप्लीट हो चुका है कोई भी काम. मींस अभी तो मैं काम कर रहा हूं बट आने वाले टाइम में मैं खत्म कर दूंगा जल्दी. ओके, जल्दी मैं खत्म कर दूंगा. ये कहते हैं जल्दी मैं खत्म कर दूंगा, तो प्रेजेंट परफेक्ट है. सो व्हाट इज द फॉर्म? सब्जेक्ट plus has, have. Make sure you use has, have in present perfect plus verb की third form plus object. So that's the importance. Okay, now if I talk about an example, I would say he has written a letter. So that's the present perfect. Now if I talk about present perfect continuous, what is it? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब है एक समय पर मैं काम कंप्लीट कर चुका होऊंगा. मींस बात फिर भी प्रोबेबिलिटी की ही आ जाती है और अभी तो वो चलता जा रहा है. अगर मैं सिंप्लीफाइड में तो बोलूं तो वो है
मैं काम कर रहा हूं और वो चलता जा रहा है. Not too much different than present perfect, but it is quite different. Okay, so if I talk about its form, that is subject plus has have तो आएगा ही आएगा, plus being plus verb की ing form plus object. मेन डिफरेंस जो है आप देख ही रहे हो, सिर्फ फॉर्म्स का, लाइक हैज हैव, वर्ब की फॉर्म्स लाइक आपने आईएनजी यूज करनी है, फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, थर्ड फॉर्म यूज करनी है. ओके, सेकंड फॉर्म सिर्फ आपकी पास्ट में आएगी. ठीक है, तो वो आप ध्यान रखना. ठीक है, अब ये मैंने पास्ट और प्रेजेंट के बारे में बताया. अब जिसका नाम है फ्यूचर. अब क्या मतलब है फ्यूचर का? फ्यूचर सेंटेंसेस क्या है? प्रोबेबिलिटी है, एक्सेप्शंस नहीं है. एक्सेप्शंस नहीं है, हम उसे एंटिसिपेशंस कह देते हैं. अब एंटिसिपेशंस का मतलब क्या होता है? प्रिडिक्शंस, कि इस समय ये काम हो रहा होगा, एक काम यहां से स्टार्ट हो गया है, होता जा रहा होगा, वहां पर जाकर खत्म हो जाएगा. तो ये है फ्यूचर. अब इफ आई टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनिट, इसमें स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन आपकी दिखाई जाती है. आई विल डू दैट वर्क, आई विल प्ले क्रिकेट, मैं करूंगा. ठीक है, तो ये सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्वियसली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो आएगी ही आएगी. ओके, आई विल डू दी वर्क, दैट इज फ्यूचर इंडेफिनिट. नाउ फ्यूचर परफेक्ट. व्हाट इज फ्यूचर परफेक्ट? फ्यूचर परफेक्ट की फॉर्म है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. मेन चीज जो यहां पर है उसको एग्जाम्पलीफाइड वे में बताऊं, ही विल हैव बीन डन दैट वर्क, मीन्स वो इस समय तक काम कर चुका होगा. ठीक है, हमें ये नहीं पता कि कर लिया है या कर रहा है, हमें ये बताया गया वो इस समय तक काम कर चुका होगा. ओके, सो नाउ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये हमेशा जो बच्चे हैं इस चीज में फंस जाते हैं. फ्यूचर में किसी भी काम का समय बताया है. यहां पर इस सेंटेंस में ये बताया है कि अभी तो वो काम चल रहा है. ठीक है, सॉरी, इन फ्यूचर वो काम यहां से स्टार्ट होगा, मीन्स किस समय से स्टार्ट होगा. लाइक ये एक मतलब प्रोजेक्ट जैसे हम कह लेते हैं, जब डेवलपमेंट चार्ट आ जाते हैं ना फ्यूचर के लिए, लाइक अभी तो ये है, बाद में बहुत सालों बाद ये ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है, ऐसा हो जाएगा. ठीक है, तो ये वो वाले सेंटेंसेस है. इसमें फॉर्म्स एस मीन्स सब्जेक्ट प्लस will और shall प्लस has प्लस been, has और have इकट्ठा ही आएगा, ध्यान रख लेना. has, have प्लस been प्लस verb की थर्ड फॉर्म, और सॉरी verb की ing फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. सो ये ध्यान रखना, बहुत गलती होती है बच्चों को. सो इफ आई exemplify that, what is this? So he will has been doing the work. ओके, सो ये इंपॉर्टेंस है, हम ऐसे सेंटेंसेस को सॉल्व कर सकते हैं. आई मेक श्योर दैट दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेस आर क्वाइट इंपॉर्टेंट, एंड आई थिंक ये जो टेंसेस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपकी राइटिंग पार्ट में, स्पीकिंग पार्ट में, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स के मार्क्स इसमें करते हैं. और इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया ताकि आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाए कि आप टेंसेस को एक वेरी सिंप्लीफाइड वे में समझ पाए और इजिली आप अपने डिजायर्ड ब्रांड स्कोर्स ले सके. ओके, एंड आई विल मेक श्योर दैट your comments can really help me, and I think this will be a really beneficial part for me to improve myself, my videos as well. So thank you and have a nice day.